Good morning, students. Today, name of the topic is derivative of parametric functions. Means parametric functions are those functions in which you have to take the derivatives of one functions with respect to another functions. In this case, derivative is not with respect to x. In this case, the derivative of a functions with respect to another functions. Means exercise 5.6, x and y are connected parametrically by the equations. In exercise 1 to 10, without eliminating the parameters, find dy by dx. Question number 1 I am taking. If x is equal to 2a t square, comma, y is equal to a t raised to power 4, find dy by dx. In this case, x is a function of t, y is a function of t, and a is your constant. ऑल द एग्जामिनेशन ये भी मैंशन होगा कि ए कांस्टेंट है या नहीं, बट बुक्स में यहाँ पे साइलेंट है. तो सिंस यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx, this is your x, this is your y, and t is your perimeter. T is your perimeter. This point should be noted. T is your perimeter. It means you will find here differentiation with respect to t. This is also with respect to t. Like with respect to t mean dx by dt यहाँ निकालेंगे. 2a कांस्टेंट है तो ये 4at आ जाएगा, बिकॉज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है. यहाँ से आप dy by dt निकालेंगे. a कांस्टेंट है, 4at क्यूब आएगा. अगला क्वेश्चन आपका dy by dx निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे dy by dt इंटू dt by dx. तो दिस बिकम्स 4at क्यूब divided by 4at. Answer will be t square. This is your question number 1. Perimeter you have to select. This is a very important question. Normally teachers इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दे रहे होते हैं, बिकॉज इसमें बच्चे से सारा नॉलेज कवर हो जाता है. इसकी दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं. लेट मी टेक द सेकंड केस आल्सो. सेकंड केस में चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मिल नहीं रहा हो, बट आई कैन टेक इट फ्रॉम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स. In second case, what you have to done is in this way: differentiate sine square x with respect to e raised to power cos x. This question I have taken example number 48. Page number 190. I mean, this is the second category of your parametric functions. Now differentiate this with respect to this. Now let y is equal to sine square x and z is equal to e raised to power cos x. That is, this implies y with respect to z implies you have to find out dy by dz. ये बात ध्यान से रोक लेना. यहाँ पे आपको
dy बाय डी जेड निकालना है। y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, आइदर x और y में तो पूछेंगे dy बाय डी एक्स और डिफ्रेंशिएट विद, ओनली यू हैव टू टाइप ऑफ कैटेगरीज। नाउ दिस x इज द पैरामीटर इन दिस केस, दिस इज कॉल्ड नंबर 1, दिस इज कॉल्ड नंबर 2। तो फ्रॉम हेयर you may write here dy by dx, derivative is 2 sin x into cos x. From here you can write dz by dx, e raised to power cos x as it is, and derivative of cos x is minus sin x. According to the statement, you have to find out dy by dz, that is 2 sin x into cos x divided by e raised to power cos x into minus sin x. तो फाइनल आंसर इज 2 cos x माइनस साइन इंटू e raised to power माइनस cos x लिख लेते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। To cover up the variety, in the first lectures I have taken both categories in which x and y's are given, and this is maybe your example number 1 more questions you may take, example number 47 of miscellaneous. Again this is a parametric type. This is the right statement because they have mentioned that for a positive constant a, find dy by dx. Y is equal to a raised to power 1 plus 1 by t, sorry, t plus 1 by t, and x is equal to t plus 1 by t raised to power a. First t is the parameter, dy by dt निकालिए, a raised to power t plus 1 by t into log of a. By chain rule डेरिवेटिव ऑफ t is 1, 1 by t का डेरिवेटिव माइनस 1 by t स्क्वायर, ये प्रोडक्ट में आएगा, ये भी प्रोडक्ट में। और here dx by dt, now a is in power, that is constant की पावर a minus 1, and its derivative is 1 minus 1 by t square. बिकॉज इसमें दोनों क्वालिटीज़ आपकी कवर्ड होती हैं, बिकॉज मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंसिडर्ड होते हैं कि a रेज टू पावर t प्लस 1 बाई टी into log a is equal to 1 minus this and all this. Now next point is very simple. You have to find out dy by dx, that is dy by dt into dt by dx. This is your dy by dt into log a into 1 minus 1 by t square and divided by a raised to power t plus 1 by t raised to power a minus 1 into 1 minus 1 by t square. जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दीजिए, बाकी का आंसर ऐसे ही लिख लो, a raised to power t plus 1 by t into log a and divided by a into t plus 1 by t raised to power a minus 1. So this is your example number 47, miscellaneous. Next,
In parametric categories, your exercise 5.6, question number 2. If x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta, तो dx by d theta will be a into minus sin theta and dy by d theta b into minus sin theta. So this implies dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx. That is b of minus sin theta divided by a of minus sin theta. The final answer is b by a. This is your second questions. Your third questions, in every question you have to find out dy by dx because question number 1 to 10 में यही है. If x is equal to sin t, y is equal to cos 2t, तो here dx by dt will be cos t and dy by dt will be equal to minus sin 2t into t because 2t का डेरिवेटिव बाय चेन रूल. तो दिस implies dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे t और थीटा में देख लेना जो वेरिएबल्स होते हैं वही लेने चाहिए, माइनस साइन 2t इंटू टी डिवाइडेड बाय कॉस टी. सिंप्लीफाई भी हो सकता है कर रखा हो पीछे बिकॉज ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि आंसर किस शेप में दिया हुआ है, लेकिन जो फंक्शन सिंप्लीफाइड हो जाते हैं उनको कर देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. x is equal to 4t, comma y is equal to 4 by t. वही सेम dx by dt will be equal to 4 and dy by dt will be equal to minus 4 by t square. So this implies dy by dx will be minus 4 by t square divided by 4. The final answer is minus 1 by t square. बिकॉज इम्प्लिसिट में मैंने बताया था कि dx by d थीटा मीन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो बेसिकली आप चाहें तो जो मैंने ये स्टेप्स है बार बार लिख सकते हैं, मतलब dy by dx के लिए ये स्टेप्स बार बार लिख सकते हैं आप लोग. अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं ये स्टेप्स. लेकिन ये क्वेश्चन इतने सिंपल थे तो एग्जामिनेशंस में कई बार पैरामीट्रिक को चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, है dx बाय d थीटा will be minus sin theta plus 2 times of sin 2 theta और dy by d theta cos theta minus 2 times of cos 2 theta.
तो here dy by dx will be equal to cos theta minus twice of cos 2 theta divided by minus sin theta plus 2 times of sin 2 theta. ये फाइनल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a into 1 plus cos theta. dx by d theta a इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा. ये सम तो एग्जाम में भी आया था. 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. दिस इम्प्लाई dy बाय dx माइनस a साइन थीटा दिस इज माइनस. इसको इस शेप में सॉल्व कर लेना चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी. वैसे कोई कहता नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, बट अगर जो आप कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है. माइनस कॉट थीटा बाय 2, ये इसका आंसर दे दो. मैंने कहा कि जहाँ पे आप कंफर्टेबली लगता है कि हम सम सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. लेंथी सम है, करा देते हैं. x is equal to sin cube t divided by under root of cos 2t and y is equal to cos cube t upon under root of cos 2t. देखिए वैसे तो इतना लेंथी नहीं है, बट इसका जो आंसर पीछे दिया हुआ है माइनस कॉट 3t है, उसको टैली करने के लिए थोड़ा सा लेंथी है. वैसे तो सिंपल सी हैं, बिकॉज दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन विद t. इफ यू फाइंड आउट dx बाय dt, ऑफ कोर्स यू विल अप्लाई द क्वोशंट रूल एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस स्क्वेयरिंग करेंगे. अंडर रूट ऑफ cos 2t एज इट इज. इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 3 sin square t इंटू cos t विद माइनस साइन sin cube t एज इट इज. इट्स डेरिवेटिव यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं. पहले अंडर रूट का लेंगे, फिर cos 2t का लेंगे, फिर 2t का लेंगे. ये इनके डेरिवेटिव आएंगे. थोड़ा ध्यान देना, ये 2 से 2 कैंसल्ड, मैं कैंसिल नहीं करूँगा, दिखाऊंगा सिर्फ आपको. और ये पार्ट एलसीएम आ जाएगा. जब ये पार्ट एलसीएम आएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट एलसीएम आएगा, तो ये यहाँ जाके cos 2t बन जाएगा. ये 3 sin square t cos t माइनस का प्लस हो जाएगा sin 2t sin cube t and divided by cos 2t into under root of cos 2t.
तो ये मैंने कहा थोड़ा लेंथी है। सिमिलरली dy बाय dt निकाल लेते हैं। अगेन ऐसे ही cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t एज इट इज। डेरिवेटिव मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि कोई टर्म इधर उधर ना हो जाए। 3 cos k t माइनस साइन टी ब्रैकेट क्लोज माइनस cos क्यूब t एज इट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t माइनस साइन 2t इंटू 2। सेम एलसीएम, 2 से 2 कैंसल्ड, सेम स्टेप्स। Here I will write cos 2t, here I will write 3 cos k t minus sin t, here plus cos cube t sin 2t divided by cos 2t into under root of cos 2t। मैंने कहा कि आप ये पॉइंट ऐसे नोट कर सकते हैं। दोनों के डेरिवेटिव में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम फाइनल आंसर्स टैली करने की कोशिश करेंगे। हमें dy बाय dx निकालना है। तो ये न्यूमरेटर में रखूंगा, ये डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर टैली करने के लिए ऊपर वाले स्टेप्स में हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 2 cos k t माइनस 1, cos 2t का फार्मूला। इसको लिख सकते हैं हम 3 cos k t माइनस साइन टी प्लस 2 cos क्यूब टी इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। मैंने साइन 2t का फार्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर सेम रखा। यहां से मैंने साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लिया। ऐसा करने से यहां से -3 6 cos क्यूब टी -3 cos टी ये बनेगा। मैंने साइन टी और cos टी कॉमन लिया तो बाहर खाली 3 cos टी बचा प्लस 2 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय अब इधर आ जाइए। इसमें मैं फार्मूला लगा रहा हूं 1 - 2 साइंस के टी cos 2t का। यहाँ पे ये टर्म ऐसे ही रख रहा हूँ 3 साइंस के टी cos टी। इसको लिख रहा हूँ 2 साइन टी cos टी साइन क्यूब टी।
नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रख रहा हूं। यहां से भी मैं साइन टी और कॉस टी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से बचेगा 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी +2 साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय cos 2t अब अगर तो मैं यहां से dy/dx लिखता भी हूं, जो जो टर्म कैंसल्ड हो रही है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये साइन टी कॉस टी कैंसल्ड हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर कैंसल्ड, वहां से माइनस साइन अगर जो मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये रिजल्ट आता है 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, और यहां से जो रिजल्ट नीचे आएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, तो ये बनेगा -cos 3t का फार्मूला और ये बनेगा sin 3t का फार्मूला। पीछे आपका आंसर -cot 3t है। तो बुक का आंसर टैली करने के लिए मैंने ये सम इस तरीके से कराया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अदरवाइज आप गेट कंफ्यूज्ड। डेरिवेटिव लेने तक तो मैंने आपको कुछ नहीं कहना, बिकॉज दिस इज योर जनरल प्रैक्टिस। नंबर 2, इस क्वेश्चन में बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि dy/dx का आंसर कॉट में आता है। कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन। इसका मतलब यहाँ cos 2t का फार्मूला cos में लगाएंगे और यहाँ cos 2t का फार्मूला साइन में लगाएंगे। दूसरा स्टेप ये ध्यान में रखना है कि मुझे sin t इंटू cos t भी कॉमन लेना है, अदरवाइज कॉमन तो cos t भी आ रहा है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, वो cos 3t का फार्मूला नहीं बनेगा। यहाँ पे भी sin t इंटू cos t लेना है। जब बच्चा इस तरीके से करेगा तो यही प्रॉब्लम इसमें अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि y वाली टर्म में cos 2t का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos लगाना है और x वाली में फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन लगाना है और sin t इंटू cos t कॉमन लेना है। बार बार वीडियोस पॉज करके इस सम को नोट करिए, बार बार बच्चे इसका डाउट पूछते हैं। इस बार प्रॉब्लम हम टीचर्स को भी कम आने वाली है, बिकॉज हम बार बार आपको ये वीडियो का रेफरेंस दे देंगे कि यहाँ से इस सम को करिए। वीडियो पॉज कर करके एक एक डेरिवेटिव का स्टेप्स लेते रहो। जैसे मैंने एलसीएम्स ली हैं, अपने आप आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा स्टेप कहाँ से कैंसिल करना। तभी लेंथी सम्स था, इसलिए मैंने पूरा पूरा आपको ये करा दिया गया, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन प्रूव दैट में दे दिया है, तब हम आपका आंसर, आपसे उम्मीद करेंगे कि यही आंसर जाए। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि भाई आपके टीचर्स ने ये प्रूव दैट में देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट t/2 सेमी कॉलन y इज इक्वल टू a sin t। देखिए अगर मैं यहाँ dx/dt लेता हूँ, a इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी, टेंजेंट t/2 1/टेंजेंट t/2 लिखिए, इंटू टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t/2 लिखिए, इंटू t/2 का डेरिवेटिव 1/2 लिखिए। a इसको माइनस साइन टी, इसको साइन कॉस में चेंज करिए,
2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2 ऊपर लिख दो, सीकेंड स्क्वायर का नीचे जाके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, टी बाय 2 ब्रैकेट बंद, ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय 2 साइन टी बाय 2। ये सिंप्लीफाई आना चाहिए फंक्शंस। एनसीईआरटी में जैसे लॉग टेंजेंट टी बाय 2 आ गया तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। ये साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाय साइन टी इंटू ए आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कॉस के टी डिवाइडेड बाय साइन टी। ये सिंप्लीफिकेशन बच्चों को आनी चाहिए कि लॉग टेंजेंट टी बाय 2 मुझे कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। और डी वाई बाय डी टी इज ए कॉस टी। तो दिस implies now कि dy by dx will be equal to dy by dt into dx by dt। a cos t divided by a cos k t, ऊपर टेंजेंट t आ जाएगा, साइन t आ जाएगा, कैंसिल करके फाइनल आंसर इज टेंजेंट t। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा देता हूं। इसमें लॉग टेंजेंट टी बाय 2 को बार बार पॉज करके प्रैक्टिस करना। एक दो क्वेश्चंस ही हैं प्रैक्टिस के, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसमें स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम्स होती है, मैं सिर्फ डेरिवेटिव लेके दिखा देता हूँ, आगे अपने आप करेंगे। ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। जब यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाना आता तो ब्रैकेट लगा दिया करो। थीटा साइन थीटा में बच्चा प्रोडक्ट टूल भूल जाता है। तो दिस इज साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफ कोर्स ये ए थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, इसमें बच्चों की ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, बिकॉज साइन का कॉस ले लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते, इसलिए आगे प्रोडक्ट टूल गलत हो जाता है। यहाँ कॉस थीटा आएगा माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा का डायरेक्ट। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए थीटा साइन थीटा आएगा। आगे कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 आगे कंप्लीट कर लेना। दिस इज नॉट कंप्लीट। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, प्रूव करना है रेदर देन। पहले इनको प्रोडक्ट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो। प्रोडक्ट करने का मतलब है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड हो गए, बनेगा अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, जो आपको पता अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर पाई बाय 2 आएगा। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, y x एज इट इज, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स।
x इंटू वाई में प्रोडक्ट टू लगाया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। बाकी मुझे एक एग्जाम्पल नंबर 37 में अपने विचार देने हैं। जिस तरीके से बुक ने किया है आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है कि बच्चा इस क्वेश्चंस में ऐसे ही डरा डरा रहता है कि सर मुझे एग्ज़ाम में कैसे पता लगेगा, किसी को भी नहीं पता लगेगा। ये x की पावर 2/3 है, y की पावर 2/3 है, इज इक्वल, आप इसको सीधा इम्प्लिसिट कैटेगरी से करिए। आप लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज ये एग्जाम्पल नंबर 37 के बारे में मैं दे रहा हूँ। तो ये 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y रेज टू पावर -1/3, या दिस इज माइनस, ऊपर वाला साइन तो चेंज कर ही सकते हैं, y बाई एक्स की पावर 1/3। तो आपने कोई बुक वाला मेथड नहीं लगाना, मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ। ना ही एग्ज़ाम में आपको बुक वाला मेथड याद रहेगा, ना ही उसने ऐसा कुछ लिखा है कि यूजिंग पैरामीट्रिक और ये सब सम करिए। तो दिस इज कंप्लीट एक्सरसाइज। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप कर लेना। आज की एक्सरसाइज में मैंने दोनों पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी लिए।